Good morning students, hope you all are very well with your parents. Today we continue our second chapter of history, that is the earliest people. In our previous class we studied about early man, why did early man move frequently, and Stone Age, division of Stone Age and techniques of tool making, uses of tools and Stone Age sites. Now we come in today's topic, that is rock painting. Cave or rock paintings are paintings depicted on the walls of rock or caves. The rock painting belongs to various period of time from Upper Paleolithic to the Neolithic period. रॉक पेंटिंग वो होती हैं जो केव और रॉक पे या वॉल पे बनी होती थी, जो अर्ली मैन के द्वारा बनाई जाती थी. इस पेंटिंग में वो वेरियस पीरियड्स, अलग अलग पीरियड्स के लोगों की लाइफ स्टाइल के बारे में डिस्क्रिप्ट करते थे, उनको बताते थे, जैसे अपर पैलेयोलिथिक टू न्यूलिथिक पीरियड. वी स्टडीड अबाउट इन आवर प्रीवियस क्लास दैट stone is divided into three periods: Paleolithic period, Mesolithic period and Neolithic period. Do you understand, students? Upper Paleolithic and Neolithic period. We did not get any evidence of painting from lower or middle Paleolithic age. In the Upper Paleolithic period, we see artistic activities. हमको ज़्यादातर पेंटिंग जो उनकी पेंटिंग की हुई है वो देखने को अपर पैलेयोलिथिक पीरियड में मिलती है. उनकी पेंटिंग अपर पैलेयोलिथिक पीरियड में वो ज़्यादा से ज़्यादा पेंटिंग्स का यूज़ करते थे. ओके स्टूडेंट्स, नाउ द सीन जनरली डिपिक्ट्स हंटिंग, डांसिंग एंड एनिमल फाइट्स. एनिमल सच एज बाइसन, टाइगर, एलिफेंट, मंकी, लिजर्ड, पीकॉक आर द डोमिनेंट सब्जेक्ट ऑफ दीज पेंटिंग्स. उनकी पेंटिंग्स का मेन सब्जेक्ट था बच्चों हंटिंग, डांसिंग, एनिमल फाइट्स. मतलब कि एनिमल्स जो थे, एनिमल्स का पिक्चर वो ड्रॉ करते थे. जो हंटिंग करते थे, उन्होंने कैसे हंटिंग किया वो ड्रॉ करते थे. एंड एलिफेंट, एनिमल्स के पिक्चर्स ड्रॉ करते थे. द कलर यूज्ड are mainly in red and white with occasional use of green and yellow. वो जो अपनी पेंटिंग्स करते थे वो ज़्यादातर, अधिकतर उसमें रेड और वाइट कलर का यूज़ करते थे, बट ओकेजनल कभी कभी वो ग्रीन और येलो कलर का भी यूज़ करते थे. नाउ स्टूडेंट्स, यू थिंक दैट हाउ दे फाइंड कलर इन स्टोन एज. ओके, लेट्स वी tell you. They got red from hematite. Now in India we say गेरू, जिसको हम गेरू कहते हैं, उस समय वो इसका यूज रेड कलर में करते थे. एंड ग्रीन प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ ग्रीन कलर्ड रॉक कॉल्ड चालकेडोनी. वाइट आर प्रोबेबली फ्रॉम लाइमस्टोन. Okay students, do you understand that how they find colors? Okay, now rock paintings have been found near the river on rocks and caves. The study of painting suggests it could be 20,000 to 30,000 year old. The style of the painting suggests it could be 20,000 to 30,000 year old. Okay, the Nalda, Gararda, Golpur rock painting sites are the best sites discovered so far. This is the best sites of stone paintings: Nalda, Gararda and Golpur. Okay, rock painting sites have also been discovered in the rural area of Bundi. And rock painting कहाँ पे डिस्कवर की गई थी? एक रूरल एरिया में, बुंदी के रूरल एरिया में. ओके, बट द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट स्पेक्टेकुलर वन इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश. लेकिन जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और अच्छी पेंटिंग थी वो मध्य प्रदेश में पाई गई थी. ठीक है, थी
उस वो पेंटिंग जो थी मध्य प्रदेश में जो पाई गई थी वो भीम बेटका पेंटिंग है। कौन सी पेंटिंग है बच्चों? भीम बेटका पेंटिंग। नाउ यू थिंक अबाउट हाउ दे पेंट्स पेंटिंग्स। In that time there was no brushes and the early pupils they not use to brush for painting. They used thorn of porcupines, stems of trees and his own fingers. Okay students, now I tell you some prehistoric famous paintings. Magura cave painting and Bhimbetka cave. Bhimbetka cave in Madhya Pradesh in Bhimbetka. We can see nearly 20th layer of paintings, one on top of another. Some paintings even show scenes of pupils gathering fruit or honey from tree or the women grinding and preparing food. Now, important, the Bhimbetka cave and rock painting discovered by Padma Shri Harivu Wakankar. Okay, do you understand? इस गुफा की जो खोज की थी भीमबेटका पेंटिंग की, किसने की थी? पद्मश्री हरिवु वाकांकर ने की थी। ये पेंटिंग जो है यहाँ पर कुल 600 गुफाएं हैं। भीमबेटका में जो गुफाएं मिली हैं वो 600 हैं, जिनमें से 275 में हमें पिक्चर्स प्राप्त हुए, मतलब चित्र प्राप्त हुए हैं। इनमें हमें दो डिवाइडेशन होता है, दो मतलब टाइप्स के पिक्चर्स प्राप्त हुए। पहले स्तर के चित्रों में शिकार, नृत्य तथा जंगली जानवरों का चित्र मिलता है, जबकि जो सेकंड टाइप की पिक्चर्स है उसमें मानव सहचर के रूप में दिखाया गया है, मतलब वो कैसे अपने लाइफस्टाइल को जीते थे। ओके, एंड दिस वन Mogra cave painting is one of the largest cave in Bulgaria, located in the northwest part of the country. Mogra cave painting is one of the largest cave in Bulgaria, located in the northwest part of the country. They are painted with bat, guano and represent hunting and dancing people as well as large वैरायटी ऑफ एनिमल्स। इस पेंटिंग में हमें उन लोगों के द्वारा, उस वक्त के मानव के द्वारा, स्टोन एज के जो पीपल्स थे उनके द्वारा डांस करते हुए लोग और बहुत सारे वैरायटीज एनिमल्स की पिक्चर्स देखने को मिलती हैं। दिस इज योर रॉक पेंटिंग डिस्क्रिप्शन। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।